So basically routing क्या होता है? Routing is process wherein user gets redirected to different pages based on the URL specified by user. But React का router यहाँ पे कैसे work करता है? You know that we create a single page application when we are working with in React. ठीक है? So React router में यहाँ पे क्या होता है? Basically by using the concept of root we specify the path of URL और उस path पे हम लोग redirect होते हैं, but that particular path will not redirect us to the different page. वो same ही page में only part of page को update करेगा, right? So let's see that example. हम लोगों ने कल ये example देखा था wherein we were having this navigation bar where we had this 3 options of home, blog, contact. Okay, now let's assume that right now I will click on this blog option. तो system क्या कर रहा था? It was basically updating this part of my web page instead of updating the entire web page. ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने कैसे किया था? So we had installed the library which is related to routing process in React. क्या library थी? हम लोगों ने start किया था by installing this library. What was the code to install the library? npm i-d. After that you are supposed to write the name of your library, that is your React router DOM. ठीक है? After installation of library, what we had done, whatever pages we are supposed to have in our web application, वो हम लोगों ने यहाँ पे create किए थे. For that, what we had done is source folder में we had created one folder of pages. Within the pages folder, हम लोगों ने create किया था यहाँ पे layout.js. This layout.js is an important file because it will be the file in which we are going to have the component arrangement. Okay. After this, we were having blog.js. After this, we are having contact.js. Sorry. And the third page that we had was home.js. ठीक है? Now, in blog.js, contact.js and home.js, we were having normal code. Let's take an example. In home.js, what we had done, हम लोगों ने यहाँ पे एक component create किया था. हमारे component का यहाँ पे नाम क्या है? It is home. Okay, now we are defining this component using the concept of arrow function. Arrow function में we are putting up the empty brackets because we are not passing any argument to this component. Fine. After this, arrow curly braces में we are going to specify the data that is supposed to be rendered on our HTML page. Okay, so यहाँ पे whatever data, whatever markup text we are writing inside the return statement will be rendered on your HTML page. Let's assume I have simply written like this. So अब क्या हो जाएगा? जब आपका home component यहाँ पे execute हो रहा है at that time, only simple message with this h1 tag will be displayed. Fine? Okay. After this, हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिजाइन किया था? We are having one index.js file. This index.js file is basically executing which component? It is executing app.js component. So हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने ये app.js component की फाइल में changes किए थे. Fine. What were the changes in app.js file? What were the changes in this file? Okay. So first of all हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? We had imported all the important files. So let's assume that मेरे पास यहाँ पे जितनी भी source के page folder के अंदर जितनी भी JS file हो, जितने भी components है, जो मुझे यहाँ पे present करने हैं, उनको import करना है in my current file. So how am I supposed to do that? Simply write import statement. Let's assume that I want to import home component. This home component which comes from home.js file inside this current file, that is app.js. तो आप कैसे लिखोगे? Import home. This is the name of your component. From where you are importing this? From current folder के अंदर we are having pages folder. Within pages folder, which file we are having? Home file. Okay. So यहाँ पे dot specifies that right now we are having app.js in source folder. From source folder, you are supposed to go to the pages folder. From pages folder, you are supposed to go to
home.js file. ठीक है. Similarly, we will import all other files that we have. Fine. So we are going to import all other files that we have. Now within this app component, आप क्या define करने वाले हो? What you are going to define over here? So in function app, first of all, मेरे पास जो मेन टैग यहाँ पे है वो कौन सा टैग है? We are having browser router. Now browser router exactly यहाँ पे किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? So browser router tag allows you to know that this is having collection of routes. Collection of route मतलब the component where you want to get redirect, उसकी information हम लोग कहाँ पे specify करेंगे? Within browser router. ब्राउजर राउटर के अंदर मेरे पास कौन सा टैग था? रूट टैग. पहले आता है हमारा यहाँ पे कौन सा? राउटर टैग. एंड विद इन राउटर टैग यू आर हैविंग रूट टैग. अब देखो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन. सिंगल पेज एप्लीकेशन में हम लोगों ने यहाँ पे कैसे क्रिएट किया है? यहाँ पे सारे आपको लिंक्स दिखेंगे. बिलो दैट यू आर गोइंग टू सी द कंटेंट रिलेटेड टू लिंक. अग्री? ठीक है. सो नाउ यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज गोइंग टू रिमेन कॉमन ऑन ऑल द पेजेस. ठीक है. जिस जगह पे तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए वो कौन सा पार्ट है? दिस इज द पार्ट वेयर योर कंपोनेंट शुड बी रेंडर्ड. मतलब यहाँ पे क्या है? वी आर हैविंग वन पेरेंट कंपोनेंट. ये पूरा आपका यहाँ पे क्या है? दिस इज योर पेरेंट कंपोनेंट. इस पेरेंट कंपोनेंट का जो यहाँ पे पार्ट्स हर पेज पे डिस्प्ले होगा वो कौन सा है? द नेविगेशन बार दैट यू आर हैविंग. और जो पार्ट यहाँ पे चेंज होने वाला है वो आपका यहाँ पे क्या है? चाइल्ड कंपोनेंट. ओके. एंड ये जो पेज आपके सामने प्रेजेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन वेयर वी आर गोइंग टू राइट? वी आर गोइंग टू राइट दैट इंफॉर्मेशन इन अवर layout.js फाइल. ठीक है. सो यहाँ पे your layout.js file is going to act as a parent component file because the data of layout.js file will be there on all the component child component pages. Okay. So हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? Within the router tag we are going to have this root tag and this root tag is going to act as a parent component. हमारे parent component का नाम क्या है? What is the name of our parent component? Layout वाली फाइल है. Okay, how do we specify that? Path, then element. Path का मतलब यहाँ पे क्या है? The data that you are going to write in URL part. मतलब हमारा यहाँ पे अगर मैंने URL में लिखा है localhost 3000. After that, say suppose if I am writing layout, तो कौन सा पेज या कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर होना चाहिए? layout.js फाइल. ठीक है. सो यहाँ पे पाथ में मैं क्या रखूंगी? दैट आफ्टर लोकल होस्ट 3000 हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? लेआउट. ठीक है. एंड यहाँ पे जब लेआउट का ये बटन क्लिक होता है या यूआरएल में हम लोगों ने लेआउट मेंशन किया है तब वो मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहिए? इट शुड रिडायरेक्ट मी टू layout.js फाइल एंड दैट इंफॉर्मेशन इज सपोज टू बी स्पेसिफाइड इनसाइड द एलिमेंट पार्ट. ओके. सो एलिमेंट पार्ट कैसे लिखते हैं हम लोग? कर्ली ब्रैकेट. विद इन द कर्ली ब्रैकेट specify the name of your component using angular bracket. Always remember कि component का नाम start होता है यहाँ पे capital से. Don't make this mistake. कल मैंने देखा था काफी लोगों ने ये mistake की है. Okay? So जो component का नाम है हमेशा आपको यहाँ पे start करना है capital letter से. Okay? And component का जो ये function भी बन रहा है उसका भी नाम start करना है with capital letter. Okay. So now this is your parent component. पेरेंट कंपोनेंट का जो रूट है वी आर क्लोजिंग दैट. विद इन पेरेंट कंपोनेंट अब आपके पास क्या होगा? चाइल्ड कंपोनेंट. सिमिलरली यू आर सपोज टू राइट द डेटा फॉर ब्लॉग और कॉन्टेक्ट. ये डेटा आप यहाँ पे लिखोगे. ठीक है.
So now we are clear with this file. अब ये फाइल में there are 3 tags that we have used. एक है browser router, second है router और थर्ड है हमारा root. तो इन तीनों टैग्स को मुझे अगर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? I have to import this tags. ठीक है, इंपोर्ट कहाँ से होंगे? Import within the curly bracket you are supposed to specify browser router, then roots and router. ठीक है, ये कहां से इंपोर्ट होने वाले हैं? फ्रॉम React router do. ठीक है, so this is our app.js file. Fine. Now we are going to design our layout.js file which will be rendered on our page when our application is firstly running. So यहाँ पे layout.js file हम लोग यहाँ पे define कर देते हैं. Let's design this component. Okay. Now in this component मेरे पास यहाँ पे जो टैग यूज होगा वो कौन सा होगा? लिंक टैग. इन नॉर्मल वेब पेज हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? वी मेक यूज ऑफ एंकर टैग इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक. बट व्हेन वी आर वर्किंग विथ रिएक्ट उस टाइम हमको यहाँ पे क्या यूज करना है? वी आर सपोज टू मेक यूज ऑफ लिंक टैग. लिंक टैग के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई? एग्जैक्टली हम लोगों को अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करती हूँ, वेयर शुड आई गेट रिडायरेक्टेड? इट इज सपोज टू बी स्पेसिफाइड ओवर हियर. ठीक है, लिंक का हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्या है पैरामीटर? 2. 2 क्या स्पेसिफाई करता है? कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, मतलब वो कहाँ रिडायरेक्ट करेगा? रूट. यहाँ पे हमारा अगर 2 एलिमेंट इक्वल्स टू मैंने लिखा है से सपोज स्लैश, देन वेयर इट विल रिडायरेक्ट मी. सो सिस्टम वर्क कैसे करता है? से सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 2 में स्लैश करके होम. लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? होम. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिंक टैग क्लोज करके जो टेक्स्ट मुझे यूजर के एंड पे डिस्प्ले कराना है वो मैंने क्या लिखा हुआ है? आई एम राइटिंग होम ओवर हियर. सो यूजर के एंड पे क्या डिस्प्ले होने वाला है? ऑन यूजर एंड हमारा यहाँ पे होम डिस्प्ले होगा. व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, सिस्टम क्या आइडेंटिफाई करेगा? इट विल आइडेंटिफाई कि मुझे रिडायरेक्ट होना है कहाँ पे? होम पे. ये यहाँ से कहाँ जाएगा? इट विल गो टू योर app.js फाइल. उसमें आइडेंटिफाई करेगा कि अगर यूजर ने पाथ में यहाँ पे होम लिखा है तो मुझे कौन सा कंपोनेंट एग्जीक्यूट करना है? होम कंपोनेंट. सो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन दिस पेज होम पे क्लिक करने के बाद द सिस्टम विल बेसिकली शो मी और रेंडर द होम कंपोनेंट ऑन माय पेज. फाइन. अब ये जो यहाँ पे पार्ट है इधर मुझे डिस्प्ले कराना है, इस कंपोनेंट को इस प्लेस पे डिस्प्ले कराना है, इस कंपोनेंट को इस प्लेस पे डिस्प्ले कराना है, वो कैसे पता चलेगा? how the user will basically tell the system that जो भी कंपोनेंट मुझे डिस्प्ले कराना है आई वांट टू डिस्प्ले इट ओवर हियर या इधर, कैसे पता चलेगा? So outlet is a tag which will tell the system that whatever component मुझे यहाँ पे रेंडर करना है वो आउटलेट वाले टैग की जगह पे करना है. सो आउटलेट टैग जहां पे भी लिखा होगा वहां पे आपका चाइल्ड कंपोनेंट क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू गेट रेंडर्ड. ओके, सो चाइल्ड कंपोनेंट विल बी रेंडर्ड ओवर हियर बिकॉज हम लोगों ने आउटलेट टैग कहां पे लिखा है? आफ्टर लिंक. सो दिस इज व्हाट वी हैड डन यस्टरडे. एक बार उसका यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं so that you can get idea that what we had done. Okay, those who are absent they can see the results. Right now let's go to our localhost 3000. So we are having this 3 links over here. मैं अगर ब्लॉग पे क्लिक करती हूँ तो ब्लॉग पेज का जितना भी कंटेंट है वो कंपोनेंट है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है. If I click on contact page, I will be basically able to see the information related to my contact link. ठीक है, होम पे हम लोग क्लिक करते हैं. सो वी हैड नॉट रिटन एनी डेटा ऑन दैट होम पेज. सो हमारा जो कॉन्टेक्ट पेज है वो एज इट इज रहा है. इट इज नॉट रेंडरिंग माय होम पेज. फाइन. सो दिस वाज समथिंग दैट वी हैड सीन यस्टरडे.
नाउ लेट्स राइट नाउ सी, मुझे एक बात बताओ, इन दिस कोड ओके, नाउ इन दिस कोड जब हम लोग यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज प्रेजेंट करते हैं तब मेरा यहाँ पे बट ऑब्वियसली लेआउट डॉट जेएस कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, बट व्हाट इफ मुझे यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंपोनेंट चाहिए व्हेन आई एम रेंडरिंग माय एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। इट मीन्स अभी क्या हो रहा है राइट नाउ, अगर आपने यहाँ पे एग्जीक्यूशन देख रहा हो तो जब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 करती हूँ, व्हेन आई एम राइटिंग सिंपली लोकल होस्ट 3000, उस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर एबल टू सी होम, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, ये 3 लिंक आपको दिख रहे हैं। अग्री? बट व्हाट इफ अगर मुझे चाहिए कि इस लोकल होस्ट 3000 पे बाय डिफॉल्ट ये होम वाला कंपोनेंट जो है ना वो प्रेजेंट होना चाहिए। यू आर सेइंग लेआउट डॉट जेएस के अंदर ऐड कर सकते हैं, ट्रू। मतलब मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, नॉट इन दिस स्पेस, यू आर सेइंग दैट मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, कैसे हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? सो व्हाट आई वांट इज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होम होना चाहिए। जैसे अगर आप नॉर्मल वेबसाइट यहाँ पे सर्च करते हो, यूट्यूब अगर आप देखते हो तो यूट्यूब में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे जो हाईलाइटेड वीडियोस होते हैं बाय डिफॉल्ट देखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी लेफ्ट पैनल हुई, दिस इज योर सर्च ऑप्शन वाला पार्ट एंड दिस इज योर चाइल्ड कंपोनेंट विच विल बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, ठीक है। सर्च में जैसे मैंने यहाँ पे कोई सॉन्ग सर्च किया, देन दिस पार्ट ऑफ योर पेज विल बी अपडेटेड। अग्री? बट बाय डिफॉल्ट जब तुम यूट्यूब ओपन करते हो इधर कुछ ना कुछ डेटा तुमको दिखता है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे कोई नई मूवीज रिलीज हुए हैं, कुछ नए सॉन्ग्स रिलीज हुए, तो सारे न्यू सॉन्ग्स की इंफॉर्मेशन या वीडियोस तुमको इधर दिखते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? बाय डिफॉल्ट मुझे चाहिए कि इन तीनों में से एक कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग द नेम ऑफ योर सर्वर या फिर जो भी डोमेन है वो। हाउ कैन वी डू दैट? Yes, please tell me how can we do that? React.js का कोड दिखाती हूँ, ये लो। जहाँ पे स्लैश लगाया है वहां पे डायरेक्टली होम कर दे। कहाँ पे स्लैश है? लिंक वाला कहाँ पे है? वी आर नॉट हैविंग। ओके, सो यू आर सेइंग कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, लेट्स कीप दिस ब्लैंक, ठीक है। आप ये बोल रहे हो इसको ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि होम वाले पार्ट में डायरेक्टली मैं क्या रखूं, स्लैश रख दूं, ऐसे कुछ। ओके, आप यहाँ पे बोल रहे हो नहीं। सी अभी जो यहाँ पे आपका चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? आउटलेट में, ठीक है। सो तुमको उसी आउटलेट के टैग के यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा तक मुझे वहां पे चाइल्ड कंपोनेंट ये डिफॉल्ट कंपोनेंट चाहिए। So there is one parameter named as index. Index parameter के through you can tell the system that when your page is getting rendered for the first time with the default data that you have in your page, that is हमारा यहाँ पे link वाले part के साथ मुझे यहाँ पे एक default component चाहिए। कैसे बता सकते हो ये चीज? In this file, ये जो तुम्हारा root वाला part है ना, ये रूट वाले पार्ट में ही एक नया रूट आप ऐड करो। उस रूट में आपको यहाँ पे ये जो पाथ वाला पार्ट है ना ऐड नहीं करना। तुम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट इंडेक्स ओवर हियर। आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट कंपोनेंट that should be presented on your page when your domain address is searched.
तो यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट कंपोनेंट मुझे कौन सा चाहिए, होम कंपोनेंट. सो राइट दैट नेम ऑफ कंपोनेंट. सो जैसे ही आपके सिस्टम को यहाँ पे इंडेक्स कीवर्ड दिखेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, आपके जो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 वाले डोमेन है जब आपके सामने प्रेजेंट होता है, the name of the file should start with capital letters. So I'm writing example.js over here. Let's start defining this file using arrow function. हम लोग इसको define कर देते हैं. Okay. So right now what I am doing is एक normal यहाँ पे h1 tag लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ this is example page. This is the default component page. फाइन, ये मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस पेज को बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट करना है, रेंडर करना है जब मैं यहाँ पे डोमेन एड्रेस यहाँ पे ओपन करती हूँ. सो लेट्स गो टू आवर app.js फाइल. app.js फाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू फाइल आपने क्रिएट की है, इंपोर्ट दैट फाइल ओवर हियर. सो जो आपका यहाँ पे फंक्शन नेम है यहाँ पे एग्जाम्पल. कहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर इंपोर्टिंग दैट फाइल फ्रॉम अवर पेजेस फोल्डर. पेजेस के अंदर वी आर हैविंग अवर एग्जाम्पल फोल्डर, नॉट फोल्डर, सॉरी, एग्जाम्पल इज योर फाइल. ओके, मुझे क्या चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपकी ये एग्जाम्पल वाली फाइल यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए व्हेन यू आर ओपनिंग योर डोमेन. सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, रूट, और उसके बाद पाथ लिखने की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, इंडेक्स कीवर्ड. आफ्टर दैट हम लोगों ने एलिमेंट में कंपोनेंट का नाम स्पेसिफाई किया है जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है when I open that domain address. ठीक है, so we are done with this file. Example.js में do not forget to write this export statement, export default name of your component. Don't forget to write this line. ठीक है, so we are done. सिर्फ एक ही फाइल में चेंज करना था. कौन सी फाइल में, app.js फाइल में, जहां पे रूट वाला टैग है उसी टैग में you are supposed to specify the इंडेक्स कीवर्ड. ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं हमारे रिजल्ट्स कैसे दिख रहे हैं. सो नाउ सी, इफ आई ओपन डोमेन एड्रेस लोकल होस्ट 3000, क्या दिख रहा है, layout.js में जो लिंक्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं वो, एंड बाय डिफॉल्ट जो आपने ये एग्जाम्पल वाला कंपोनेंट क्रिएट किया है वो आपको दिख रहा है. सो दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज डिफॉल्ट कंपोनेंट पेज. ये हम लोगों ने कहाँ पे टाइप किया था, बेसिकली ये हम लोगों ने टाइप किया था हमारे example.js पेज में. राइट नाउ अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट मॉडिफाई भी करूंगी, यू विल बी एबल टू सी द मॉडिफाइड स्टेटमेंट. सो हेलो वर्ल्ड इज माय न्यू स्टेटमेंट, जस्ट सी द पेज. अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड. आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, एक बार सब लोग करके देखो. वंस यू आर डन विद दिस प्लीज लेट मी नो. हाँ बोलो. न्यू फाइल क्रिएट करो, इंपोर्ट करो, एंड उसी यहाँ पे न्यू कंपोनेंट को रेंडर करो आपके यहाँ पे डोमेन एड्रेस पे.